السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل دین اسلام میں۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بیان لائے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت، عظمت، شان اور برکت۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، پلیز ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گناہگاروں، سیاہکاروں، آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا، تلبیہ پکارنے لگا، لبیک لبیک لبیک، احرام باندھ کر کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے پروردگار میں حاضر ہوں، بے نیاز خالق و مالک میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر ختم کرانے آیا ہوں، گناہوں کے دفتروں کو چھپانے آیا ہوں، ستاری فرما۔ غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ لیکن نوجوان نے بھی سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں اس گرمی میں اگر حاضری منظور نہیں، میں نے بھی آواز سن لی، کیا کرو گے تکلیف اٹھا کر، کیا کرو گے مصیبت میں جا کر، کیا کرو گے پریشانی میں جا کر، جب حاضری منظور نہیں تو پھر دھکے کھانے کا فائدہ کیا۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ ہر سال آتا ہوں، آواز لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے یہ آواز آتی اللہ لبیک۔ 53 سال گزر گئے آواز سنتے سنتے، پر میرے پاس بھی کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں،
कोई दर नहीं, कोई मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जबीन न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना। मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तो बंदगी करना है। आवाज आई, आज हमने यकदम 54 हज कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे। तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहाँ जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है। अर्श के सामने एक सतून है, वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तू क्यों हिला? कहता इलाही माफी मांग रहा है, रो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, उसकी बख्शिश हुई नहीं, मैं कैसे ठहर जाऊं? रोजे की कदर और कीमत का आपको पता ही नहीं। हदीस शरीफ की किताबों में है, अजाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है चांद नजर आते ही। मुर्दे अर्ज करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। सुभान अल्लाह। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। सुभान अल्लाह। इसलिए कहता है कि तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज, कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। सुभान अल्लाह। बेशक यह है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं, शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलासास।
अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्ल का अंधेरा, मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क, सब ये तेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के, लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया, तू मेरा बंदा, सुभान अल्लाह, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया। अल्लाह फरमाता है माँ के पेट में खाने पीने का इंतजाम मैंने किया। तेरे पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए गिजा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोजी पहुंचा दी, पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजिस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराबें पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। अब शराबें पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद ग्रामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं भुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा, माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा। किस तरह? फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असम्बली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला। अगर मां को
टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया, बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, सौ इंतजाम, डाकखाने, बैंक सब तुम्हारे लिए। मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा। फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। नहर के किनारे में मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना अल्लाह का काम है। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद। क्या कुर्बान जाऊं उसकी नियामतों के, उसने परवरदिगार जो ठहरा, रब जो हुआ। फरमाया अगर ये नहर बंद कराने के लिए काक मोल खरीदने पड़ते तो बाप की सारी कमाई इसी पे लग जाती। देखते नहीं हो ये निपल चूसनी बाजारों में, चाइना की बनाई हुई निपल चूसनी 3 दिन के बाद खराब, अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन के बाद खराब, और पाकिस्तान वालों की बनाई हुई बनाने से पहले ही खराब। अपा कलमा गो है, हर काम कलमा पढ़ के करते हैं। जब तक बदमाशी ना करें हमारे इस्लाम का हक अदा नहीं होता। जब तक मिलावट ना करें मुसलमान का पेट भरता ही नहीं, और भरता तो फिर भी नहीं। कुरान कहता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। फरमाया कब्र में आ जाता है, खोपड़ी भरती नहीं। करोड़पति जो है उसको दूसरा करोड़ चाहिए, लाखपति जो है उसको दूसरा लाख चाहिए, अरबापति जो है उसको दूसरा अरब चाहिए। कौन मांगे, कौन शुक्र अदा करे। अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे तू तो गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, तुम्हारे यहाँ तेरी माँ कहाँ से रेफ्रिजरेटर लाती, फ्रिज कहाँ से लाती, थर्मोस कहाँ से लाती। अमीरों के यहाँ तो बड़े बड़े गर्म दूध के इंतजाम है। जब बच्चा रोया गरम गरम दूध पिला दिया। फरमाया तुझे क्या मालूम है, पो का महीना, सर्दी का मौसम है, यख मौसम है, बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी बरस रही है। रात के 12 बजे भी अगर तूने माँ की छाती को मुंह लगाया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने गरम गरम दूध पिलाया। मैंने तेरी माँ की छाती को ही थर्मोस बना दिया। तू वजीर का बेटा थोड़ा ही है, तू डीसी एसपी का बेटा थोड़ा ही है। तू तो एक मजदूर का, चौकीदार का, रेड़ी वाले का, कुत्ता रेड़ी वाले का, रक्शे वाले का बेटा है। मैंने तो तेरी माँ की छाती को थर्मोस बना दिया। और कभी कभी चीनी की बड़ी किल्लत हो जाती है तो फरमाया माँ अपनी चाय के लिए चीनी लाया करे, तेरे बाप के लिए चीनी शक्कर लाया करे, खरीदा करे, डिपो पे जाया करे, दुकानों से लिया करे, हलवे के लिए चीनी खरीदो, खीर के लिए खरीदो और चाय के लिए चीनी खरीदो। पर मुझे अपनी किबरियाई की कसम 2.5 बरस तक तूने माँ का दूध पिलाया, मैंने तेरी माँ के छाती में ही शुगर मिल कायम कर दिया। एक दिन भी फिक्का दूध नहीं पिलाया, अंदर ही अंदर मैंने जरूरत के मुताबिक मीठा बना करके मिलाकर तुझे खीर पिलाया। जो खुदा माँ की छाती में शुगर मिल कायम कर दे, जो खुदा माँ की छाती को थर्मोस बना दे, जो खुदा माँ की छाती को रेफ्रिजरेटर बना दे, वो खुदा कहता है आ मेरी इबादत कर, मेरा कुरान पढ़, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मान, फरमान को मान। और यूं कहता रहे हर वक्त सरबसुजूदु मगर, सरबसुजूदु मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं,
सरबस वजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। ओ मेरी परवरदिगार, क्या ठिकाना मेरे गुनाहों का, क्या ठिकाना मेरे ऐबों का, क्या ठिकाना मेरी बुराइयों का। जमीन व आसमान का खलापुर हो जाए, बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ा स्याकार हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, तेरे करम के उम्मीदवार हूँ, तेरे करम पे उम्मीदवार हूँ। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, कोठे पे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू फरमा दी, जहन्नुम का जिक्र आ गया। सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। कुल्लमा नगिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के कहर से डरकर इतने रोए कि परनाले से नीचे टपकने लगा। तुझे तो यकीन नहीं आएगा, तेरे दिमाग में खुदा का कहर कभी आया ही नहीं, तू कभी रोया ही नहीं। तुझे क्या पता, रोने वालों की आंखें गल गई, रुखसारों पे बह बह कर आंसुओं ने नालियां बना ली थी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के। एक आदमी नीचे से गुजरा, उसके पटके पे कतरे टपके, नाराज होकर कहने लगा, ओए कौन है, कोठे पे मेरा कपड़े पलीत कर दिए। आवाज आई, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है। वो भी कदरदान था, घर गया, बेटी को कहने लगा, ये मेरी पगड़ी, ये मेरा साफा संभाल कर रख दे, धोना नहीं, जब मेरी मौत आ जाए मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मेरा पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा मैं रो नहीं सका, एक रोने वाले के आंसुओं की टपकी हुई पगड़ी साथ लेके आया हूं। इसी को इसीलिए फरमाया, तुमने रोजा रखा मेरे लिए, हर इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे, नमाज का बदला फरिश्तों उठो महल्लात दे दो, सोने चांदी के मकान दे दो, मुझको अंबर साफरान के गारे के बने हुए महल्लात दे दो, इतनी नहरें दे दो, इतने मकान दे दो, इतनी हूरें दे दो, ज़कात के बदले में ये दे दो, खैरात के बदले में वो दे दो, जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोजे की बारी, जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों रोजे का बदला देना तुम्हारे बस का कहाँ है, रोजे का बदला जन्नत में कहाँ है, रोजे का बदला महल्लात में कहाँ है, रोजे का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहाँ है। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे की जजा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहां तक फरमाया, दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है, ओए ओए ओए, देना लेना क्या। फरमाया मैं हूं, रोजे की जजा मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जजा देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है,
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے، 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نماز کا ثواب 700 گنا نفل کا بڑھا درجہ دیا فرض جاتا کے ہے، برابر، اور فرض 700 فرض کے برابر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا، بہت ہی خوبصورت پیارا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، برکت اور عظمت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، بہت ہی خوبصورت اچھے انداز میں بیان فرمایا، آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا۔ تو اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو ہمارے اس چینل پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اگر آپ کو بیان پسند ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کے تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، برکت اور عظمت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب۔ دوستو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ ماہ رمضان المبارک امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اترا۔ تو دوستو ماہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت اور برکت عظمت ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
माह रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी बंदा मुझसे जो भी सवाल करेगा मैं अल्लाह ताला उसको उसका जवाब दूंगा। मतलब ये कि जो भी कोई इंसान मांगेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, तो अल्लाह ताला इस बरकत महीने के सदक़े उसके गुनाह भी माफ़ करेंगे। और आइंदा जो गुनाहों से बचने की दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला वो भी दुआ कबूल करेगा। और जो भी दुआ, नेक तमन्ना, दिली ख्वाहिश दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। माह रमज़ान मुबारक की बहुत बड़ी फजीलत और बरकत है हमारे लिए भी और जो हमारे फौत शुदगान हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब भी माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो जो कब्रों में जिन पर अज़ाब है तो उनका पर से अज़ाब उठा लिया जाता है। तो वो कब्रों वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, कि ये सुकून कैसा हमसे अज़ाब क्यों उठा लिया गया है। तो आवाज़ आती है कि माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया। उसकी फजीलत, बरकत और अज़मत और शान की ये खूबी है कि तमाम चीज़ों से अज़ाब उठा लिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि जन्नत को खूब सजाओ, जन्नत की तैयारी करो, क्योंकि मेरे जो बंदे हैं दुनिया में रोज़ा रख कर वो जन्नत में आएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी फजीलत और बरकत है माह रमज़ान मुबारक की। अल्लाह ताला हमें भी सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बाकी भी नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नमाज़ तरावी भी बाजमात पढ़ें और कोशिश करें कि सारी पढ़ें और कुरान मजीद की ख़ास तौर पर तिलावत करें, क्योंकि ये रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला महीना है दोस्तों। तो इसमें हमें चाहिए कि हम खूब नेकियां कमाएं। वैसे तो दुनियादारी का निज़ाम है कि एक दूसरे से लोग कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा तरक्की करूं, मैं इससे ज़्यादा तरक्की करूं, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि इस माह रमज़ान मुबारक में हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस माह रमज़ान मुबारक में, नेकी करने में और नेक कामों में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सुनहरी मौका है हम सब के लिए, अपने गुनाहों की भी बख्शिश करवाने के लिए और माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत, बरकत और अज़मत हासिल करने के लिए। तो इस माह रमज़ान मुबारक में नेकियां भी बढ़ जाती हैं कि जो कोई भी पहले अगर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ता है आम महीनों में तो उसे एक बार का सवाब मिलता है, और जो माह रमज़ान मुबारक में पढ़ता है तो उसे 70,000 मरतबा कहने का सवाब मिलता है। और जो नमाज की बात है तो अगर बाजमात नमाज अदा करनी कोई करता है तो बाकी दिनों में उसे 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है और माह रमज़ान मुबारक में 700 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और जो नवाफिल पढ़ता है माह रमज़ान मुबारक में तो उसे फ़र्ज़ों जितना सवाब मिलता है। तो बहुत बरकत और अज़मत और फजीलतों वाला महीना है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दोस्तों आपने बयान समाअत फरमाया और चंद बातें आपने मेरी भी समाअत फरमाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों अब आपसे लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कि अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।